ਹੁਣੇ ਘਰੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਹਵਾ ਨਿਕਲੀ ਪਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪੰਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 7-Eleven। रोम रोम भाइयों, जाना पैना क्योंकि कल सवेरे काम ते जाना, फिर औखा हो जाना उदों जे टायर च हवा ना होई ते फिर बहुत चक्कर पै जाना ही। सफाई बाकी करन वाली है गड्डी च, करी है नहीं आपां जे। चलदे हैं भाई, लेट्स गो। काम तो भी आज छेती छुट्टी हो गई यार, क्योंकि नेड़े ही सीगा, सैटकिल्डा गया सी, मैलबर्न दे नेड़े ही है सैटकिल्डा। ते हुण बस जल्दी फ्री होने तो बाद घरे आके ते कॉफी पी के हुणे संभालिया बाहर आके। मौसम वधिया सी, मैं किहा चल बाहर जाइए, ठंडी ठंडी हवा चलदी पई है। जदों आपां कणक नहीं लांदे इंडिया च, गेहूं लांदे आ ते मार्च दा महीना होवे ते उदों ਉਹ थोड़ी थोड़ी हो गई हुंदी है, मतलब ਇੰਨੀ ਕੁ हो गई हुंदी है ना गेहूं ग्रीन ग्रीन छोटी छोटी। ਤੇ उस टाइप ਦਾ मौसम ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਲਬਨ 'ਚ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੋਸਟ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੇ ਬੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਿਓਲੋਜੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਲੈਟਸ ਗੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੱਗਣੇ ਆ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ। ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜੁਲਾਈ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੌਸਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ ਅੱਜ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਦਲ ਵੀ ਡਿਸਪੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਦਲ ਸੀਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਕਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਸੀਸੇ ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਟੁਮਾਰੋ ਮੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਡਰੋਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਸਿਟੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੋਬ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੀਨ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਬਈ ਚੱਕਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੇਟਿੰਗ ਬੜੀ ਪਈ ਸੀ ਅੱਜ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਡੈਂਡੀਨੋਂਗ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ, 4 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, 6:30 ਵਜੇ ਡੈਂਡੀਨੋਂਗ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀਗਾ, 6:10 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜੋਬ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹ 13 ਮੀਟਰ ਟਰੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ 8 ਮੀਟਰ ਟਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੌਰੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਟਰਗਨੀਨਾ ਟਾਰਨੇਟ, ਇਹ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ ਮੈਲਬਨ 'ਚ। ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਨਦਰ ਜੋਬ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਜੋਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਿਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਤੋਂ। ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਲੈਵਰਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਕਹੀਏ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਬਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ, ਸੌਰੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਸੈਟਕਿਲਡਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਰੋਨ ਉਡਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਰੋ ਕਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਡਰੋਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਸੈਂਪਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ, ਬੜਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਥੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸਪੋਰਟਸ ਮੋਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੈਕ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਉਤੋਂ ਅਲਾਰਮ ਵੀ, ਸੌਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਬਈ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿੰਡਸ ਨੇ। ਵਿੰਡਸ ਜਦੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ ਹਵਾ, ਉਦੋਂ ਯਾਰ ਸੇਫਲੀ ਆਪਣਾ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 7-Eleven ਦਾ ਫਿਊਲ ਪੰਪ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹਵਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਐਡਵਾਂਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬੜੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਹਾਂ, ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਲੈ ਆਇਆ, ਇਧਰਲੇ ਟਾਇਰ 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਲੈਟਸ ਸੀ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਲਮੋਸਟ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਖੰਭਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ 에ਅਰ ਦੀ ਹਵਾ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਲੈਟਸ ਗੋ। ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਰੋਕਟ ਸਾਇੰਸ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 35 ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਾਇਰ 'ਚ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟਸ ਈਜ਼ੀ, ਨਾਟ ਅ ਰੋਕਟ ਸਾਇੰਸ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨੀਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੋਇਆ नहीं भाई, इनकी टेक्नोलॉजी तो फेल होगी, ये किसी ने तोड़ रखी है अंदर से, इसमें वॉल्व भी नहीं है। ये बिक गई है गवर्नमेंट। चलो कई बार इतना भी हो जाता भाई, डैमेज कर गया कोई ना कोई, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਆਇਆ ਲੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਈ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 7-Eleven ਦੇ ਪੰਪ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੰਪ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦੂਜਾ 7-Eleven ਪੰਪ, ਉਹ ਵੀ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਨਿੰਗਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਨਿੰਗਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੰਪ ਹੀ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਬਨਿੰਗਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਪ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ 에ਅਰ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਉਂਦੇ ਟਾਈਮ। ਵਰਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਨਿੰਗਸ ਆਉਂਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੀਕਸ ਰੋਡ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਰਿਵਰਡੇਲ ਵਾਲਾ 7-Eleven ਸੀਗਾ, ਰਿਵਰਡੇਲ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਟਾਰਨੇਟ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਰਿਵਰਡੇਲ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਰਾਈਟ ਇੱਥੋਂ, ਚਲੋ ਵੀ ਚਲੋ। ਵੈਦਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਈ। ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨ ਦੇਖਣਾ ਡਰੋਨ ਤੇ? ਦੇਖਦੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਰਦੇ ਆ ਟਰਾਈ, ਜੇ ਸਾਫ਼ ਰਿਹਾ ਮੌਸਮ ਤਾਂ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਦੂਜਾ 7-Eleven, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਲ 에ਅਰ। ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਗੋ। ਇਹ ਪੰਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਮਾਂਗੇ ਸਿੱਧਾ ਟਾਇਰ ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਸਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ देयर। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਚਲੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਬੱਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ, ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਬਈ, ਸੋਹਣੀ, ਨਾਈਸ ਲੁੱਕ। ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਨ। ਉਹ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ। ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਪਰਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇਰੇ ਐਤਕੀ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੇਟ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਲੈਟਸ ਗੋ। ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮ, ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਕਲੀਅਰ ਬਲੂ ਸਕਾਈ, ਕਦੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਕਲੀਅਰ ਬਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇੱਥੇ। ਮੈਲਬਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ अनप्रेडिक्टेबल, जिसकी कोई संभावना आप नहीं जता सकते कि क्या होगा थोड़ी देर के बाद।
मेलबर्न का मौसम ऐसा है, इसके बारे में ना मतलब आप बता नहीं सकते, आम आदमी नहीं बता सकता, टेक्नोलॉजी बता देती है। जब बारिश होने वाली हो या एक्सट्रीम हीट की वार्निंग हो ना, तो मोबाइल के ऊपर आ जाता है अलर्ट, ये एक्सट्रीम हीट की वार्निंग है भाई, अपना ध्यान से जाना, देख रेख करो अपनी। और ऐसा ही तब होता है जब ज़्यादा ठंड होनी होती है, एक्सट्रीम कोल्ड होता है। तो 70 का जोन है, और गुड, अब 70 पे जा रहे हैं। नेक्स्ट राउंड अबाउट है ना, उससे पहले है 7-11। ये अपना शॉपिंग सेंटर आ गया कोल्स, 3-4 शॉपिंग सेंटर है यहाँ पे आसपास। बस पहुँच गए। लो जी, यहाँ पे आ गया एक 7-11 का फ्यूल पंप। यहाँ पे करते हैं चेक कि इनका सिस्टम तो काम कर रहा है कि नहीं। अगर इनका नहीं कर रहा तो भाई और कहीं नहीं जाते, सीधा सीधा हम जाएंगे बनिंग्स, ताकि वहाँ पे जो हवा भरने का पंप आता है ना वो ले लें। कहाँ लगाए हुआ इन्होंने ये तो नहीं पता। लेट्स सी, उस साइड होना चाहिए। यहाँ एक गाड़ी खड़ी है, इधर भी नहीं है भाई, ये क्या चक्कर है। हाँ यहाँ आई थिंक हो रहा एयर उधर है, यहाँ पे है। ये लड़की वर्क करके बैठी है ना, आगे कर रही ना पीछे कर रही, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। चले गई। अब आप यहाँ पे कर लेते हैं पार्क। क्या करेगी, मेरा भी तो कौन इसका। लेट्स गो। ये लगा पड़ा इनका सिस्टम। चलो इसको संभालते हैं जाके। पहले तो ये वाली मशीन है वो जो मैं बता रहा था आपको। चलो इसको देखते हैं। ये तो कर रही है काम, चल पड़ी वो मशीन अपने आप ही। डूइंग वर्किंग नाउ। वो अपने आप बीप कर देगी। 18 हो गया प्रेशर। ओहो एरर, क्योंकि सही से नहीं लग रहा है। पड़ी अपने आप 19 पास्कल होता है ना, PSI पास्कल होता है शायद। नॉलेज थोड़ी कम हो गई है, भूल गए यार। प्रेशर किस यूनिट में मेजरमेंट होता है, कमेंट करना मैं सही हूँ या गलत हूँ। अगर सही हो वो बता देना। 30 हो गया और 34 होते ही अपने आप बंद हो जाएगा, बीप करेगा। ये ना यहाँ पे सामने जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये स्टारबक्स होती थी, स्टारबक्स। तो यहाँ पे हमने डिलीवरी भी की हुई है। हम पहले डिलीवरी करते थे वैन से, भाई मैं पहले वैन चलाता था तो डिलीवरीज करता था। यहाँ पे भी की हुई है। 3-3 2-2 पैलेट होते थे इनके। जो भी इनका सामान होता है वो सारा आता है इनमें पैलेट्स में, जिसमें भी जिससे ये चाय दूध फ्लेवर सब कुछ सारी चीज़ें। तो फिर ये जो है अपना बनाते थे। अब इसमें ना आग लग गई थी तो उसकी वजह से ये हो गया बिल्कुल ख़त्म, अब तक नहीं बनाया है। अपन जाना है राइट, तो ये अपने को रास्ता देंगे सारे के सारे रोक के, जैसे हमने पहले हमारे लेफ्ट वालों को दिया था। राइट वालों को दिया हो जाती है भूल चूक भाई, क्या करें। देखो भाई, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी फॉरेन कंट्री में आप जाते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आप वहाँ पे जाके स्टेबल हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है ना, वो मेरे खुद की जो नॉलेज है या फिर मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ कि आपकी एज मिनिमम होनी चाहिए। जितनी कम उम्र में ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या अमेरिका जहाँ मर्जी जाओ, पर कम उम्र में जाओ, थोड़ा सा 18, 19, 20 की उम्र में मेच्योर जरूर हो, समझ जरूर होनी चाहिए आपको। तो उम्र कम होनी चाहिए। उससे क्या होता है, जब तक आप 27-28 के होते हो, फैमिली या फिर वो बाकी सब चीज़ों के काबिल होते हो ना, तो तब तक आप सेटल हो जाते हो आउट ऑफ कंट्री। अब अगर आप 25 के बाद आते हो ना, तो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। 26 के बाद और डिफ़िकल्ट। जितनी उम्र बढ़ती जाएगी आपके लिए उतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाता है बाहर आउट ऑफ कंट्री स्टेबल होने के लिए। ठीक है जी, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं 26-27 की एज में आया हूँ, 28-29 अब 29 में हूँ।
लेकिन अभी पता है क्या है, मेरे ऊपर जो चीज़ें हैं वो जैसे मैरिज का हो गया, और अपना टीआरपी शुरू करनी है, एक्सपीरियंस भी करना है, ठीक है। और देखो फाइनेंशियल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आउट ऑफ कंट्री अगर आप रहते हो तो आप हर किसी पे बिलीव नहीं कर सकते, हर किसी से आप हेल्प नहीं ले सकते, क्योंकि जैसी सिचुएशन आपकी सेम सभी की होती है। तो भाई उनको ना वो भी नहीं होता, कि क्या कहते हैं, ट्रस्ट भी नहीं होता किसी पे। ऐसे ही होता है आउट ऑफ कंट्री। ट्रस्ट करना कई बार महंगा बहुत पड़ जाता है। कई बार भूल चूक में नए नए बच्चे आते हैं ना, ट्रस्ट कर लेते हैं, किसी ने पैसे मांग लिए, यार इतने पैसे दे दो उधारे, तो भाई पैसे आते ही नहीं है वापस, तो औखा हो जाता है भाई बच्चों के लिए, सभी के लिए ऑलमोस्ट। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ट्रस्ट करना मुश्किल है, पैसे कमाने हैं, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है, पार्टनर को भी बुलाना है, फंड्स की ज़रूरत पड़नी है, एजेंट की भी फीस लगती है, डेली के खर्चे भी लगते हैं, ट्रांसपोर्ट का भी लगता है, गाड़ी रेंट पे लोगे उसका भी पे करोगे, ग्रोसरीज भी पे करोगे, बहुत सारे वो खर्चे तो मैंने आपको सारे एक वीडियो में बता दिए थे, ठीक है। दोबारा से बनाऊंगा उसको थोड़ी सी और क्लियर करके, थोड़ी सी और शॉर्ट में, वो आप चैनल पे देखोगे ना तो आपको मिल जाएगी। एक दिन ऊपर राइड कर रहा था तब मैंने आपको प्रॉपरली सारा का सारा क्लियर आइडिया दे दिया था। डेली व्लॉग्स आते रहेंगे, उनमें आपको पता चलता रहेगा अगर आप देखोगे। तो मैं कह रहा था, हाँ चीज़ें बहुत सारी हैं जो आपके ऊपर डिपेंड करेंगे। फाइनेंस ही सबसे ज़रूरी है, वो बनाने के लिए आपको दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और एक और बात, अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हो ना तो भाई आप 0 लेवल से स्टार्ट करते हो, ये मेरा मानना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। इंडिया की मेरा जो पास्ट था, मैं मतलब 2017 से अर्निंग कर रहा हूँ, अपनी जॉब कर रहा हूँ, फार्मासिस्ट की कर रहा था। पहले अपोलो फार्मेसी में की थी मैंने गुड़गांव, उसके बाद मैंने लोकल की थी हमारे हॉस्पिटल में लगभग 5-6 साल तक। और अब यहाँ पे आ गया हूँ, मैं ट्रकिंग के बिजनेस में आ गया हूँ, ठीक है। अब ट्रकिंग करता हूँ, तो यहाँ पे आके मैंने 0 से ही शुरू किया। फार्मेसी में मैं गया नहीं, उसके भी कुछ सिनेरियो थे, उसके पे का चक्कर भी था, थोड़ा सा घंटे का भी चक्कर था। तो फ्लेक्सिबिलिटी अपनी देखनी पड़ती है, हर किसी को देखनी पड़ती है कि आप उस लाइन में जाके अपनी सारी चीज़ें मैनेज कर पाओगे या नहीं। फीस भी तो देनी होती है, तो हर चीज़ के खर्चे होते हैं, वो सारी चीज़ आप मैनेज कर पाते हो उसमें तो ज़रूर जाओ, नहीं कर पाते तो आप एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे जाना पड़ता है जहाँ पे आप इतना ज़रूर कमा लो कि जो बेसिक यहाँ के खर्चे हैं वो आप पूरे कर सको, ठीक है, वो पूरे कर सको, कुछ पैसे बचा सको। तो भाई एज का कंक्लूजन यही है मेरी साइड से, 18, 19, 20 की एज में आओ, ठीक है, 21-22 की में भी आ जाओ, 23-24 में भी आ जाओ, बेस्ट है। लेकिन 25 के बाद जो आप आते हो ना, उसमें थोड़ा सा सोच समझ के, अच्छी सी प्लानिंग करके और समझ की चीज़ों को फिर आओ। क्योंकि जब 25-26 के बाद ना 25 से 35 की उम्र कहते हैं ना जिसको, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज, दोस्त लोग, आपको किसी के साथ बातचीत होएगी, कोई शादी के लिए पार्टनर भी है, फ्रेंड है, कैसे है, वो सब भी देखने पड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें देखनी पड़ती है जब आप 25 से 30 में ही हो जाते हैं। तो वो पक्के की बात कर रहा हूँ मैं, कच्चे तो 18 साल के भी लगे पड़े होते हैं, ठीक है, अपना पार्टनर देखने। तो ये बात है भाई, हमेशा आओ, कम उम्र में आओ जिसने भी आना है, ठीक है। और कर्जा घना उठा के मत आओ यार। अभी मेरे को करीब 2 साल 1 महीना हो गया, मेरे अभी भी पैसे देने रहते हैं भाई, ठीक है, थोड़े से रहते हैं, क्लियर हो जाएंगे। 2 साल लग जाते हैं, हर एक स्टूडेंट को 2 साल लग जाते हैं जो कर्जा लेके आते हैं उनको। और हम यार मिडिल क्लास के बंदे जो होते हैं ना, उनके पास इतना फाइनेंस होता ही नहीं है कि वो अपनी सेविंग को उठा के इधर लगा दें, इधर उधर से करने पड़ते हैं तभी यहाँ पर। तो कुल मिला के सीन यही है कि कम उम्र में आओ जितना आया जा सके, ज़्यादा उम्र है पार्टनर के साथ आ जाओ, क्योंकि 2 लोग हो गए फिर आप एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। बहुत तरह के सपोर्ट होते हैं, सोशल, ठीक है, या फिर इमोशनल सपोर्ट हो गया, है ना, फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो जाता है। तो 2 लोग आओ अगर आना है तो। अगर 2 लोग नहीं आ रहे, कल्ला आ रहा है, तो भाई तैयार हो जाओ, कमर कस लो अपनी, खिंचाई होने वाली है पूरी। किसी भी कंट्री में चलो, पूरी जबरदस्त खिंचाई होने वाली है। अगर 26-27 के बाद आते हो तो आपको भी याद रहेगा कि हाँ कहाँ फंसे थे। मैं तो रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई, ठीक है। ऐसे तो लोग तो बताने को पता नहीं क्या क्या बता देते, ये कर लिया वो कर लिया, भाई रियलिटी कुछ और है और बताया कुछ और जाता है। अब कोई गंदे कपड़ों में ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, दिहाड़ियाँ कर रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है, लोग नहीं दिखाना चाहते और दिखाते भी नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा, इंस्टाग्राम की पोस्ट पे या यूट्यूब पे हमेशा
अच्छे अच्छे कपड़े और अच्छी अच्छी गाड़ियाँ बड़ी बड़ी और नज़ारे लेते हुए ही दिखेंगे सिटीज़ में, या फिर ड्राइविंग पे या फ्रीवे पे गाड़ियाँ भगाते हुए। ऐसी चीज़ें नहीं होती। ऐसी चीज़ें महीने में एक बार बंदा करता है, वो भी छोटी उम्र के। बड़े तो ये भी नहीं करते। ठीक है, जब चीज़ें समझ में आ जाती है ना कि आपने क्या क्या देखना है, तब आप इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर हो जाते हो। तो इसके एज का तो मैंने फैक्टर बता दिया भाई, ये सबसे ज़रूरी है। एज सबसे ज़रूरी है। कम उम्र में आओगे, जल्दी सेटल हो जाओगे और बहुत कुछ सीखोगे। बाकी घर पहुँच गए अपन, लेट्स गो इनसाइड। गाड़ी तो होगी भाई तैयार, धो दी। दो ही तो है ही नहीं धोने के लिए, तो भगवान जी तैयार हैं। ऊपर देखो बादल तैयार हैं, लेकिन हवा होगी सेट। कल जाने के लिए कोई टेंशन नहीं है। ये कौन गिर गया हवा में? हमारा बिन जो है ना पलट गया। सबके घरों के आगे बिन पड़े होते हैं, वो अपने अपने अंदर लेके सारे के सारे वो पड़े अंदर की साइड, हमारे यहीं रहते हैं। और हवा चल रही है ज़्यादा, देखो पेड़ ऐसे कर रहे हैं, तो ड्रोन चलाना इज़ नॉट सेफ। आपको व्यू नहीं दिखा सकता, कल दिखाता हूँ, या फिर विंड स्पीड अगर कम हुई तब दिखाऊंगा। कितना मस्त व्यू बना हुआ है आज। और अभी बादल जो है क्लियर होने वाले हैं। इधर से दिख रहा है, उधर सनसेट होता है, तो वो सनसेट होएगा तभी और अच्छा व्यू होएगा। मौका मिला तो ज़रूर लेके आएंगे। अभी अपन है ना स्कूल का काम करना है, असाइनमेंट्स करनी है, उस पर फोकस करते हैं थोड़ा। लोग भाई यार लड़कों के रूम ना ऐसे ही होते हैं, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लड़के नहीं करते सफाई सुबह इतनी। ये अपना गिलास है भाई, पानी पीते हैं अपन रात को 5 रख के। और ऐसे ही खिंडे पड़े यार, सारसान अभी आया हूँ बाहर से ना, तो बेसिक चीज़ें करते हैं सेटल और करते हैं आपके लिए वीडियो रेडी। ये अपना ट्रक है भाई, ठीक है, बीपी वाला ये भी चलाते हैं अपन। और ये सारे चीज़ें वो है जो अपन ने 2 साल के स्ट्रगल से जोड़ ली है। ठीक है, कोई मुश्किल से इतना कुछ जोड़ पाएगा 2 साल में, इतना हमने जोड़ दिया। 2 पिक्के यहाँ भी खड़े हैं, बाकी पसंद हो गए मेरे को, बहुत सोने सोने हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको कल मिलता हूँ, कल देखते हैं क्या सीन रहता है। विल शो यू द रियल लाइफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया डेली कैसा सीन होता है यहाँ पे। हर चीज़ वो नहीं होती जो आपको दिखाई देती है अच्छी, कई बार दिक्कतें भी, कई ऐसी चीज़ होती है जो आपको पता ही नहीं चलती। तो भाई मेरी तरफ से तो यही है कि अपना ख्याल रखो, नज़ारे लो ज़िंदगी के, बाकी एक ज़िंदगी मिली है। खुश रहो, खुश रखो अपनी फैमिली को, बी केयरफुल। और ठीक है जी, बाय बाय, थैंक यू, टाटा।